નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. છેલ્લા અમુક દિવસોથી દેશમાં સૌથી વધારે ચર્ચાતો મુદ્દો છે ઇથેનોલ અને ખાંડ. એવી તો શું જરૂર પડી કે આપણે નિકાસ કરતા હતા એ ખાંડ એટલી મોંઘી થઈ છે અને હવે આપણે આયાત કરવી પડે એવી સ્થિતિ છે. આપણે પેટ્રોકેમિકલ્સ, પેટ્રોલ ડીઝલથી માંડીને જે ક્રૂડ ઓઇલ છે આયાત કરીએ છીએ, ખાદ્ય તેલ આયાત કરીએ છીએ. હમણાં 11% ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી હટાવીને કપાસ, કોટનની આયાત કરવામાં આવી અને ખાંડ છે. તો ખરેખર શું આયાતના નામે અથવા આયોજનના નામે ખાંડ ખવાઈ ગઈ છે અથવા ખવડાવી દેવાઈ છે? ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ને, ખાંડ ખવડાવી દીધી. તો મોંઘવારીની ખાંડ શું ખવડાવી દેવાય છે? ઘણા બધા નિયમો આવી રહ્યા છે, ઘણી બધી વાતો આવી રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર સ્પષ્ટતા કરી રહી છે જ્યારે ઇથેનોલ સાથે આ વાત જોડવામાં આવી કે ભાઈ એના કારણે ખાંડનો ભાવ વધશે. પરંતુ શેરડીનું પિલાણથી લઈને અને પિલાણ પછી જે સ્ટોક હયાત છે તેને લઈને, જે જરૂરિયાત છે તેને લઈને ઘણી વખત એવી પરિસ્થિતિ થાય કે પત્રકારોને પણ વાસ્કો દી ગામા બનવું પડે. વાસ્કો દી ગામાને તો ભારત મળી જાય, પરંતુ પત્રકારોને આંકડાઓ નથી મળતા, એ પણ સવાલ છે. તો લોકો પણ કન્ફ્યુઝ છે કે ખાંડના ભાવ વધ્યા કેમ. એના પાછળના કારણો જાણીશું. એસએપી, કેમ કે સ્ટેટ એડવાઇઝ પ્રાઇસ ડિક્લેર થાય છે, જેમ એમએસપી હોય છે જ્યારે પિલાણ થાય અથવા તો શેરડીની ખરીદી થાય. યુપીમાં સૌથી વધારે જોયું હશે. તો ઉપર નીચે થયા કરે, સમયાંતરે એસએપી ડિક્લેર થયા કરે. અને ગુજરાતમાં પણ જે શુગર મિલો છે તેની હાલત શું છે આપણે જાણીએ છીએ, ગીર સોમનાથના પટ્ટામાં કે દક્ષિણ ગુજરાતના પટ્ટામાં. રાજકારણને લઈને અથવા તો શેરડી પકવતા ખેડૂતોને લઈને અથવા ભાવને લઈને. બીજી મોટી વાત એ છે કે ભલે દેશના નાણામંત્રી દેશની સૌથી મોટી પંચાયતમાં એમ કહે કે હું ડુંગળી લસણ ખાતી નથી, પરંતુ સરકાર કાંદા એક્સપ્રેસ દોડાવી રહી છે. આજે જ નિર્ણય કર્યો. દિલ્હીમાં ડુંગળીના ભાવ 60ને પાર છે. ચેન્નઈમાં 58 રૂપિયા કિલો પ્રતિ ડુંગળી મળી રહી છે રિટેલ માર્કેટમાં. તો હવે ખાંડ સાથે ડુંગળી પણ શું ટેન્શન વધારી રહી છે? તો ખાંડમાં ખરેખર ઘટી શું રહેવું છે? પડદા પાછળ ચાલી શું રહેવું છે? અથવા તો માર્ચ, એપ્રિલ, મે સુધીમાં શું ખબર હતી કે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની હતી? તો પહેલા આયાત થઈ જવી જોઈતી હતી. જે સંગ્રહખોરો છે એ સેટિંગમાં મળીને ખાંડ ખવડાવી રહ્યા છે ભાવ વધારાની, અથવા ખેલ અલગ છે? ઘણા બધા સવાલો છે. બે ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાશે. ડૉક્ટર જયનારાયણ વ્યાસ આપણી સાથે જોડાશે અને આલોક ભદોરિયાજી આપણી સાથે જોડાશે. બંનેનું સ્વાગત છે. વ્યાસ સાહેબ, આપથી જ શરૂઆત કરીએ. આપણે ત્યાં કહેવત છે ને, ખાંડ ખવડાવી દીધી. હવે ખાંડ સાથે સાથે આજે તો કાંદા એક્સપ્રેસ દોડાવવાની વાત પણ આવી કે ભાવ વધ્યા છે. તો ખાંડમાં જે તર્ક ચાલી રહ્યા છે, સરકાર જે સ્પષ્ટતા કરી રહી છે, અથવા બ્રાઝિલમાં જે કંઈ પણ થયું ઇથેનોલને લઈને અથવા તો ખાંડના વપરાશને લઈને, ખરેખર આની પાછળના કારણો શું છે? અથવા તો શું આપણે આયોજનમાં થોડા પાછા પડ્યા કે હવે મોંઘવારીની ખાંડ પ્રજાને ખવડાવવા દેવામાં આવી રહી છે? તો ચાલી શું રહેવું છે ખાંડ ભાવ વધારાને લઈને? મૂળભૂત રીતે આયોજનનો અભાવ, અથવા તો જાણી જોઈને આયોજન સામે આંખ મીચામણા કરવા, અને કેન્દ્ર સરકારના એક મંત્રીનો ઇથેનોલ પ્રેમ, આ બંને કારણભૂત છે. કારણ કે માત્ર ખાંડ અને ઇથેનોલનો પ્રશ્ન નથી. ઇથેનોલ વાળું જે E20 ફ્યુઅલ છે એ એન્જિનને વહેલું રિટાયર કરી દે છે, એને નુકસાન કરે છે, એ પણ પ્રશ્ન છે. એટલે સરકારમાં કોઈને તુક્કો સૂઝ્યો અને કોઈ મંત્રીની ઇથેનોલની ફેક્ટરી હોય એટલે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનો ભેળસેળ કરવાની વાત આવી. તો તમે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની ભેળસેળ કરવાની વાત કરો છો, તો 1990-91માં આપણે માથાદીઠ 3.5 કિલો તેલ ખાતા હતા. અત્યારે 23 કિલો ખાઈએ છીએ. 1,40,000 કરોડનું ખાવાનું તેલ આયાત કરીએ છીએ. ત્યાં તમે લોકમત જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કેમ નથી કરતા કે તમને આનાથી હાર્ટ એટેક થશે, તમને બીજી નુકસાની આવશે, તમે તેલ ઓછું ખાઓ? તો આ બધા પ્રશ્નો નહીં થાય. પણ એ કરવાનું કોઈ કોઓર્ડિનેટેડ સરકારમાં એક ખાતાની બીજા ખાતા સાથેની કામગીરીમાં ક્યાંય સંકલન હોય તેવું દેખાતું જ નથી. દરેક ખાતું પોતપોતાની રીતે નિર્ણય લે છે. ગુજરાતમાં પ્રવીણભાઈ, એક વાત તમને ખાસ કહેવા માગું છું કે ગુજરાતમાં ભયંકર કટોકટી ઊભી થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે સૌથી પહેલી બારડોલી ખાંડ શુગર ફેક્ટરી સ્થપાયેલી,
એ ફેક્ટરી છે, કામરેજ છે, સાયન્સ છે, આ બધી ફેક્ટરીઓને હવે બીજી તકલીફ ઊભી થવા માંડી છે, કારણ કે ત્યાં ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વધવા માંડ્યો છે. ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વધવા માંડ્યો છે એટલે શેરડીનું વાવેતર ઓછું થવા માંડ્યું છે. એટલે પિલાણ માટે જરૂરી શેરડી ઉપલબ્ધ બનતી નથી. આ શુગર મિલો ગમે ત્યારે બંધ થાય તો નવાઈ પામવા જેવું નહીં હોય, અને બંધ થશે તો હજારો કામદારો બેકાર થશે, એમાં પણ કંઈ શંકા નથી. ચીકુના કિસ્સામાં આવું થયું છે. સુરત જિલ્લો એ ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ચીકુ પકવતો હતો. સુરત જિલ્લાના ચીકુના ઉત્પાદનમાં 60% જેટલો ઘટાડો થયો છે. આ સ્થિતિ શેરડીની થવાની છે, કારણ કે શેરડીની જમીનો છેવટે વેચાય છે, ત્યાં કમર્શિયલ થાય છે, ઉદ્યોગો થાય છે. સરવાળે તો શેરડીનું વાવેતર ઘટે છે, અને એ ઘટશે તો આજે બારડોલી શુગર ફેક્ટરી 800 ટનથી શરૂ થયેલી, અને ઇટ ઇઝ ગોન અપ ટુ મોર દેન 100,000 ટન્સ. એટલે એમાં લાવશો ક્યાંથી શેરડી? તમે વાત કરો છો કે બ્રાઝિલની વાત કરો છો, ઇથેનોલની, ખાંડમાંથી ઇથેનોલ બનાવવાની વાત છે, કારણ કે શેરડીમાં તો પૂરતું આમે ઉત્પાદન નથી, અને શેરડીને બીજા પ્રશ્નો છે. શેરડીમાં હવે કોજનરેશન કરો એટલે તમે જે બગાસ છે એને બાળી નાખો, એટલે એ આખો જે શેરડીના કૂચા, બગાસ, એ બધાના ડિસ્પોઝલના પ્રશ્નો છે. એટલે સરકાર અને ખાંડ ઉત્પાદક સંઘ ડાબો હાથ શું કરે છે એ જમણા હાથને ખબર નથી. સરકારમાં ખાંડ કમિશનરની એક પોસ્ટ છે. એ ખાંડ કમિશનરને તમે એકરેજ વિશે પૂછો કે કેટલા એકરમાં ખેતરનું શેરડીનું વાવેતર થાય છે, તો એને ખબર નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 9 થી 10% ઈલ્ડ મળે. તમે 1 ટન શેરડી વાપરો તો એમાંથી 10 ભાગો એટલે 100 કિલો તમને ખાંડ મળે. આ એનું ગણિત છે. તો તમે એક બાજુ ખાંડમાંથી ઇથેનોલ બનાવશો, બીજી બાજુ શેરડીની પાક પકવતી જમીનો ઓછી થઈ રહી છે, શેરડીનું વાવેતર ઘટી રહ્યું છે, અને આ જે બધી ફેક્ટરીઓ ઊભી છે એને પૂરતું ફીડ નથી મળી રહ્યું. તો ગુજરાત માટે તો બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થશે. જેટલી જાગૃત શુગર લોબી ઉત્તર પ્રદેશમાં છે એટલી ગુજરાતમાં જાગૃત નથી. એનું પરિણામ હમણાં તમે જોયું બારડોલી શુગરમાં સરકારી ડાયરેક્ટરોને શુગરમાં બધામાં હરાવ્યા અને એમને મારીને બહાર, ત્યાંથી હાથ પકડીને મંત્રીને ખેંચીને બહાર કાઢી મૂક્યા. આ સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. એટલે અસંતોષ પણ ભયંકર છે. પણ પ્રશ્ન બહુ ગંભીર ઊભો થાય સહકારી ખાંડ ફેક્ટરીઓનો, બેરોજગારીનો, અને એને કારણે ઊભા થતા અન્ય પ્રશ્નોનો. એવી પૂરેપૂરી શક્યતા ગુજરાતમાં तरफ गुजरात आगे वधी रही है। आलोक जी, व्यास जी ने जैसे कहा कि हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्रियों की हालत वैसे ठीक नहीं है। पॉलिटिकली भी एक अभी जो साउथ गुजरात में जो इलेक्शन हुआ था, मंत्री जी की पैनल को या फिर उनको हार का सामना करना पड़ा। उनको वीडियोस भी वायरल हुए थे कि धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो शायद अलग एक चीज़ हो सकती है। लेकिन सर, ये जो इथेनॉल वाला चल रहा है, बाद में जब शुगर थोड़ी सस्ती थी, ये इंपोर्ट वाली बात रातों रात कहाँ से आ जाती, ये समझ में नहीं आ रहा है। कॉटन में भी ऐसा ही किया था, 11% ड्यूटी हटा दी। फिलहाल हमारे गुजरात में और काफ़ी सारे राज्यों ऐसे हैं जहाँ या तो ज़्यादा बारिश गिरी है या फिर कम गिरी है। हमारे भी काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सही में सूखा है और मांग कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ स्पेशल पैकेजेस दे दो। तो इन सब परिस्थितियों के चलते हुए जब पीक पे आएगा सितंबर में अल नीनो, और हम शुगर की बात कर रहे हैं या फिर ऑनियन की बात कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है सर? या फिर पत्रकारों को भी सही में वास्को दी गामा बन के भी वो आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, जो मिलजुल नहीं पा रहे हैं, मतलब जो दावे हो रहे हैं उसके सामने? सर आप अनम्यूट कीजिए तो हम आवाज सुन सकें। म्यूट तो मैं कर चुका हूं। ओके सर, लाउड एंड क्लियर सर, अब आ रहा है आवाज। तो आपको और व्यास जी को, आपके दर्शकों को नमस्कार। आप जिस चीज को ढूंढने निकले हैं कि ये क्या हुआ है,
तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये इतनी बार इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार हम निकल चुके थे, कोरोना के समय हमने बयान दे दिया था कि दुनिया को हम गेहूं खिलाएंगे, फिर उसके बाद हम वापस हो गए, क्योंकि गेहूं का प्रोडक्शन ही नहीं था, उतना ज्यादा था ही नहीं कि हम देश की जरूरतों का और बफर स्टॉक के बाद हम निर्यात कर सकें। तो ये स्थिति बताती है, ये सर्वोच्च स्तर की स्थिति है, ये स्थिति बताती है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है, जो नौकरशाह है, या जो उससे भी बड़े, मतलब अगर आप मंत्री वाले पद पे भी पहुंच जाते हैं, या तो मंत्रियों के पास में सही जानकारी नहीं हो पाती है, या नौकरशाह उनको सही जानकारी नहीं देते हैं, या नौकरशाह अनजान देते हैं। इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक स्थिति होने वाली है। अभी आपने अपने विषय प्रवेश में एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि अल नीनो। क्या आपको मालूम है कि अल नीनो अभी 20 अगस्त को आए कि इसकी सूचना मिली थी कि अल नीनो आ रहा है? नहीं। क्या 21 अगस्त को मिली थी? क्या 1 अगस्त को मिली थी? नहीं। अल नीनो का तो अनुमान का 6 महीने हो गए कि अल नीनो के ऊपर है, कि अल नीनो आने वाला है, ऐसा हो जाएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। और दूसरा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो WHO से लेकर बात, अगर FAO को भी बात करें तो इन लोगों ने पहले ही कहा था, पिछले साल का ये बयान है कि दुनिया में ये जो लड़ाइयाँ जो हो रही थी ना, उसी समय ही ये कह दिया गया था, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कि दुनिया खाद्य संकट की ओर बढ़ रही है। ये सारे आंकड़े आपके पास मौजूद हैं। दुनिया खाद्य संकट की ओर बढ़ रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चेतावनी, आशंका। दूसरा, अल नीनो आ रहा है, इसके बारे में मौसम वैज्ञानिकों ने पहले से आपको सतर्क कर दिया है। तीसरा, आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक थे और अचानक से आयातक बन बैठे। यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि आप अगर इतने बड़े आयातक कैसे बन गए? कैसे हुआ कि चंद महीनों के अंदर आपको अपने स्टॉक का अंदाज नहीं था, आपने चीनी डाइवर्ट कर दी। आपने पिछले साल एक कानून बनाया था कि जिसमें वो शुगर केन का था, वो सिरप था और मोलेसिस था, वो एथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। ये आपने पिछली बार ये कहा था। क्यों? आपकी मंशा बड़ी अच्छी थी, बड़ी साफ सुथरी, अगर जिसको कहते हैं ना कि नीयत, इतनी साफ सुथरी नीयत थी कि भाई किसान मालिक, चीनी मिल मालिकों को भी अच्छा पैसा मिल जाए, वो किसानों के पैदावार का, गन्ने की पैदावार का भुगतान कर सकें, इसलिए जो अतिरिक्त जो चीनी आती है उसको वहां आप डाइवर्ट कर दें। हुआ क्या? कितनी खपत है? खपत आपके पास है 28 से 29 लाख टन। पैदा कितना हो रहा है? जो अनुमान है वो है आपका पिछले साल का है 32 से 34 लाख टन के बीच में, 32 पॉइंट से लेकर 34 लाख टन के बीच में एक आपका उत्पादन का अनुमान था। होता है प्रोडक्शन, ये पिछले साल हुआ था और इस साल का पिछले मतलब इस बार हुआ है 28 होते। हुआ क्या? आपका ये जो अनुमान कि आपका चीनी कम होगी, ये अनुमान कोई आज नहीं लगाया गया था, ये अनुमान आपकी गर्मियों के बाद में ही हो गया था। मई में ये अनुमान जता दिया गया था। मई में, इससे पहले अप्रैल में जो अनुमान जताया गया था उसमें यह था कि आपको 30 लाख टन की कमी, मतलब आपका अनुमान था कि 34.3 लाख टन चीनी होगी। ये एक आपका अनुमान था। इस अनुमान को आपने संशोधन कर दिया था मई के बाद में, मई के समय में, कि ये अब और कम हो जाएगी, ये 30.6 मिलियन टन हो जाएगी। अब आप अंदाज लगाइए, आपके पास सारे आंकड़े मौजूद, आपको ये भी मालूम कि कम होने जा रहा है। अब उसकी आप वजह, अगर आप चाहे मौसम ढूंढें, अल नीनो ढूंढें, कहीं मौसम का प्रभाव देखें कि कहीं सूखा पड़ रहा है या कहीं ये पड़ रहा है, तो मुझे तो हैरत की बात होती है कि भारत के कृषि सचिव से लेकर ये सारे लोगों को अभी पता चला कि भारत में मौसम में कहीं ज्यादा बाढ़ आती है, कहीं कम पानी बरसता है। बड़े हैरत की बात है कि ये 2026 में 20 अगस्त को पता चला। इससे पहले पता ही नहीं था कि पानी कहीं ज्यादा होता है, कहीं बारिश कम होती है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं सूखा पड़ता है। बहुत हैरत की बात है कि सर, अल नीनो के केस में 3 महीने पहले WMO और नासा ने मतलब गंभीर चेतावनी दी थी दुनिया भर के लिए। सरकार, दुनिया भर की सरकारें सूखे के लिए तैयार रहे, मतलब ये सटीक चेतावनी थी। यस। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए था? आपको था कि एहतियाती कदम, आपको यह आदेश जो आपने 20 अगस्त को निकाला है कि 10 लाख टन चीनी आप मंगा लें और 31 अक्टूबर तक देख लें, ये आपको आदेश आपने अप्रैल और मई में क्यों नहीं दिया? मार्च और मई में क्यों नहीं दिया? जब आपने 1 अप्रैल से, जब आपने एथेनॉल के लिए, जब आपका चीनी का या जो मोलेसेस का या जिसका भी है
शुगर सिरप है, केन जूस है, जिसको भी आपने डाइवर्ट करने का एक प्रावधान बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आदेश दे दिया कि आप डाइवर्ट कर दो। एक आपने जब प्रावधान बनाया था तभी आपने सोचा नहीं था कि अगर ये चला जाएगा तो चीनी मिलों को तो तत्काल पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बफर चला गया और आपके सारे ये सूखे, और जैसा भी आप बता रहे हैं सब लोग पहले से अंदेशा जता रहे थे कि किल्लत हो जाएगी, तो आप क्या सो रहे थे? क्या आपको एक अंदाज नहीं था? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा क्या, ये आपको अंदाज नहीं था? बड़ी ये तो बड़े शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल है जो सरकारी सवाल पे करते हैं ना, कि वो दूसरी क्लास के बच्चे, वो 5वीं क्लास के बच्चे वो प्लस माइनस नहीं कर पाते। तो क्या ये स्थिति हमारे सर्वोच्च नीति निर्धारकों तक पहुंच गई है क्या? इतना सब विपरीत परिस्थितियों का अंदाज पहले से था, पहले से अनुमान जताया गया था, चेतावनी आपके पास में थी, तो आपने वो डाइवर्जन क्यों नहीं रोका? पहला। दूसरा, आपने आयात का आदेश तब क्यों नहीं दिया? अगर आप तब देते तो अगर चीनी आ जाती तो चीनी ये आपकी 60 और 65 रुपए नहीं पहुंचती। आपका पिछले 2 महीने के अंदर आपका चीनी कहां से पहुंच गया? 48 रुपए से लेकर 55 रुपए तक पहुंच गई है। ये थोक के भाव की मैं बात कर रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है जो अभी 1 हफ्ते पहले का है ये। तो आपको पहले से था तो आपने तैयारी क्यों नहीं? सवाल तो ये उठता है। अगर आपने तैयारी नहीं करी तो मेरा एक मानना यह है कि अब जवाबदेही का दौर आ गया है। जंतर मंतर से जो जवाबदेही का दौर है वो जवाबदेही आगे तक जानी चाहिए और हर विभाग में आनी चाहिए कि आपने क्यों नहीं फैसला लिया। इस सवाल का जवाब दें। आपने अप्रैल और मई में आयात करने का फैसला क्यों नहीं लिया? जब आपकी मंशा थी, जब आपने एक प्रावधान बना दिया था कि इसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना पड़ेगा, कर सकते हैं। जब आपने चीनी मिलों को ये दिया, और जब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर महाराष्ट्र सरकार की, जहां तक मुझे खबर याद आ रही है, व्यास जी ज्यादा मेरे को करेक्ट करेंगे, आप भी करेक्ट कर सकते हैं, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि महाराष्ट्र की चीनी मिलों बहुत मजबूत चीनी मिलें हैं। मतलब शुगर एसोसिएशन अगर देश में माना जाए तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मजबूत है, उसके बाद नंबर आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो महाराष्ट्र में तो उन्होंने एथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा दी थी। कितनी बढ़ा दी है ये मेरे को अभी आंकड़ा नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने पिछले साल ही बढ़ा दी थी, जो 25-26 वाला जो काल। तो जब सारी चीजें मौजूद थी तो आपने आयात का फैसला लेट क्यों लिया? क्यों आपने पब्लिक को परेशानी में डाला? ये सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सरकार को अपनी जवाबदेही से भी आना चाहिए, और कम से कम मेरा मानना है कि ये कृषि मंत्री को भी आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम एथेनॉल में डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। ये ट्विटर खेलना बंद करें, जवाबदेही ले, सीधे माइक पे आए और बताएं कि हमने नहीं डाइवर्ट किया है चीनी। ओके વ્યાસજી, આમાં આટલા સંવેદનશીલ મુદ્દે ટ્વિટર જ ચાલી રહ્યું છે, કેમ કે આ કેસમાં પણ ઇથેનોલનો જ્યારે કેસ આવ્યો, ખાંડના ભાવ કેમ વધ્યા છે, બસ એક સ્પષ્ટતા કરી દેવામાં આવી, પણ એવી કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ થતી નથી, અથવા તો ઘણી વખત તો એવું હોય છે કે મંત્રીઓના નિવેદન પર સાહેબ 2 કે 3 મહિનામાં બદલાઈ જાય છે। જે ભદૌરિયા સાહેબે જે જવાબદેહીની વાત કરીને, અકાઉન્ટેબિલિટી દરેક જગ્યાએ હોવી જોઈએ। 140 કરોડના દેશમાં જ્યારે જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓમાં એ કપાસ હોય કે કોઈ પણ ચીજ હોય, જ્યારે લોકોના ખભા પર આવી જાય છે, બસ એને એ છોડી દેવાય છે। જવાબદેહી ને લઈને આજે પણ એટલા જ સવાલો છે જે અગાઉના કેસોમાં હતા। देखिए प्रणव, आलोक जी ने जो बात कही वो काफी अहम बात है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ। सवाल ये है कि जिम्मेवार कौन है। उन्होंने बहुत केयरफुली मगर अकाउंटेबिलिटी का बात जो अभी अभी आंदोलन में जो प्रधान के सामने हुआ उसमें कि कौन जिम्मेवार, गन चलाई किसने चलाई, इथेनॉल का निर्णय लिया किसने लिया, वो निर्णय जब लिया शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो किसने लिया था? क्या उस समय आपके पास कितनी शुगर है आपको पता नहीं था? बिल्कुल पता था। तो ये जो परिस्थिति है भारत सरकार के मंत्रालयों की, कोई भी मंत्रालय अपने आप में खुद अपना निर्णय नहीं लेता। मंत्रालय का जो निर्णय प्रणाली है, पद्धति है, वो अब पीएमओ में कंसंट्रेट और बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गई है। और चूंकि सेंट्रलाइज हो गई है, पीएम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, तो मंत्री फिर के क्यों करेंगे जबकि उन्होंने निर्णय ही नहीं लिया है? तो इसमें पिसता कौन है? जनता पिसती है।
जिसको शुगर का भाव अभी 70 हुआ, 75 होगा, 80 होगा। ये यही हाल हमारे ओनियन का है। तो या तो नुकसान होता है, भाव बढ़ते हैं तो किसान को होता है, क्योंकि तब आप आयात माल लाकर बाजार में डालते हैं या आपके रिजर्व कोटा से डालते हैं। या तो फिर जब तक वो मिडिल क्लास का सवाल है, वो पूरा बोझ सहन कर ले, उसके बाद फिर आपकी शुगर आएगी, तब जाके आप फिर कहेंगे कि नहीं अब तो शुगर आ गई है। तो ये जो परिस्थिति है कि जो निर्बल है उसको दंडित किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज है, या आलोक जी ने बहुत सही बात कही कि महाराष्ट्र की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुगर मिल्स का जो फेडरेशन है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कंट्री। तो ये इन लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है अपने आप में निर्णय लेने में सहूलियत है। गुजरात में तितर बितर है, गुजरात में नाम के वास्ते है, एक बड़ा सा बिल्डिंग बना के गांधीनगर में रखा है, और वो लोग उसमें कार्यरत हैं जिनको इनसे लेना देना नहीं है। तो परिस्थिति में जो स्टेक होल्डर्स को जब आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करके आप जब से कोऑपरेटिव जो इलेक्शंस है उसमें मैंडेट देना शुरू कर देते हैं, तो फिर यही हाल होता है ना। कोऑपरेटिव का मतलब ही यह है कि लोग सहकारिता से, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अपने आप एक दूसरे से जुड़ के काम करें। अब आप उसमें मैंडेट देने लग गए, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बात सब भाजपा का ही किया कराया हुआ है, तो भुगते भाजपा जो भी किया कराया है, और भाजपा नहीं भुगतेगा, भुगतेगी जनता। तकलीफ ये है कि जनता इतना सब जानते हुए भी जब मतदान करने का आता है, तब वापिस जाके भाजपा को वोट डाल के आ जाती है। तो अब ये लोग भी बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं कि क्या है, चाहे हम कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है, हम तो चुन के आने वाले हैं। ये बारडोली, आलोक जी हमारे यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग बना हुआ अभी दो दिन पहले। बारडोली शुगर हमारे यहाँ सबसे पुरानी सहकारी शुगर मंडली है। उसके इलेक्शन में सबके सब सरकार के प्रतिनिधि हार गए, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर, और उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाला गया कि भागो अब यहाँ से। एंड द यूथ हैज टेकन ओवर नाउ द कंट्रोल ऑफ द मिल। तो कुछ होगा। अब मोस्ट ऑफ द मिल्स इन गुजरात हैव ए प्रॉब्लम ऑफ कोजनरेशन। कोजनरेशन इज बिकमिंग ए मेजर कॉज फॉर द डेफिसिट। वो ब्रेक-इवन को ऊपर जाने ही नहीं देता है। तो ऐसी कुछ जो बातें हैं जो सरकार को उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो नहीं लेती। हमारे गुजरात में एक और भी आपत्ति मेरे ख्याल से बिल्कुल डोर स्टेप पे नॉक कर रही है, वो है कि वो इंडस्ट्रियल बेल्ट में शुगर ग्रोइंग एरियाज है, तो शुगर केन में जो उसका एरिया है अंडर द शुगर केन क्रॉप इज कॉन्ट्रैक्टिंग, कम से कम होता जा रहा है। तो आने वाले समय में दक्षिण गुजरात में प्रवीण भाई કેટલી મિલો ચાલતી છે, એ આખો એક ઇશ્યુ છે, કોઈને પડી નથી, nobody is concerned. So all the Chalthan also has problem of getting the sugar cane supply. Madhi also has the same problem. तो आइए, आज चलथान मरी का प्रॉब्लम है, कल जाके और शुगर मिलों को कामरेज का भी प्रॉब्लम करीब करीब उसके कगार पे खड़ी है। तो कल जाके वही प्रॉब्लम सब जगह पे होगा, शुगर कैन मिलेगी नहीं आपको, तो मशीनरी को क्या करोगे आप? और मजदूर जो लगे हैं मजदूर, उसमें वो मजदूरों का क्या होगा? उनको वैकल्पिक रोजी कौन देगा? उनके लिए रोजगारी नहीं होगी। किसान तो आज गन्ना पकाता है, कल उठ के और दूसरा कोई क्रॉप ले लेगा। जो साउथ गुजरात में तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है क्रॉप के लिए, सब्जियां से लेकर फ्रूट तक, हॉर्टिकल्चर तक। साउथ गुजरात is a very fertile land. So that is not the problem for the farmer going to be, but the problem is going to be the laborers who are working with the sugar factories.
तो भदौरिया जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये सब अब अल नीनो आना है, वो कब से, और ये पांचवा होगा, 4 आ गए हैं, उससे सबसे ज्यादा सीवियर होगा, ये भी बात बताई गई है। ये भी बात बताई गई है कि 7% उत्पाद में कम आएगी ये साल। अगले साल की बात तो छोड़िए, तो 7%, 16% जीडीपी है एग्रीकल्चर का, तो 1% जीडीपी आपका कम होगा। अभी 5.5 का फिगर दे रहे हैं, 4.5% जीडीपी हो गया आपका। तो टैक्सेस से लेकर जितने भी कैलकुलेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने किए बजट के लिए, सब टॉपसी टर्वी हो जाएंगे। तो ये समस्या छोटी नहीं है। अब मगर समस्या को कुल मिला के जो जो देखना चाहिए वो देखने वाला भी कोई नहीं है। ओके आलोक जी, 2 से 2.5 मिनट है, लेकिन आप कंक्लूड कीजिए। जैसे आर्थिक मोर्चे पर जो हमारे सामने जो चैलेंजेस या परिस्थितियां है, उसमें सरकार के सामने चैलेंजेस और बढ़ेगी। इकोनॉमी के सामने तो है ही, लेकिन ये बढ़ती चैलेंजेस एग्रीकल्चर को लेके बढ़ सकती है। आलोक जी, देखिए, एग्रीकल्चर को लेते हुए निश्चित तौर पे ये काफी समस्या गंभीर होने वाली है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना मिले हैं, और ये सबसे संवेदनशील मुद्दा यहाँ के चुनाव में होता है। ज्यादातर चीनी मिलों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, सरकार भी दबाव बनाती है कि वो सबसे पहले किसानों के बकाया का भुगतान कर दें। अब पहली बार वो किसानों के बकाया का अगर भुगतान अगर वो समय पे करती हैं, और अगर वो नई चीनी के मिलों का हमेशा पेराई सीजन, जिसको पेराई सीजन बोलते हैं, जो ये चालू होने वाला है अभी, तो उसमें हमेशा गन्ने के जो समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी, वो बढ़ा दिया जाता है। चाहे थोड़ा बढ़ाए, लेकिन बढ़ता जरूर है। अब ऐसी स्थिति में जब वो चीनी यहाँ पर बाजार में जब आ जाएगी, 10 लाख टन चीनी रहेगी, और सबसे ज्यादा आप ये मान के चलिए कि उत्तर भारत में ही चीनी की खपत होती है फेस्टिव सीजन के कारण, वो चीनी पहले से बाजार में आ गई है। तो अब ये बात करिए, चीनी मिलों के लिए भी एक दिक्कत आएगी कि वो चीनी बेचेंगे कैसे और किस भाव पर बेचेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और मुझे को लग रहा है कि ये जो किसानों का जो डिस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये बढ़ेगा और ये काफी दूर तक ले जाएगा। वैसे ही वहाँ पर बेरोजगारी और दूसरी चीजों से सब लोग दिक्कत में हैं, और ये चीनी का जो ये नया संकट है, मतलब चीनी उत्पादकों का जो संकट आएगा, जो किसानों का, ये वास्तव में सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां करेगा। और ये केवल ये सेक्टर नहीं है, चीनी मिल का मतलब कृषि सेक्टर, और इतना बड़ा सेक्टर है, और इससे जुड़े हुए लोग, कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, ये इनका स्ट्रेस इतना ज्यादा आगे बढ़ता है कि ये आपका ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, इसकी खरीद पर असर पड़ता है। ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर की खरीद पर असर पड़ता है। असली इकोनॉमी तो वहीं से पता चलती है। चमचमाती और लाखों की कार की बिक्री के आंकड़े से आप थोड़ा सा खुश तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी उससे नहीं चला करती है कि आपने 80 लाख और 1 करोड़ की कार बिक गई तो और आपने कह दिया कि ऐसा हो गया, सब देश तरक्की कर गया। उससे नहीं होता। 2 व्हीलर ही एक असली तस्वीर है देश की, जो ये बताती है। और किसानों को अगर दिक्कत आएगी तो ये वहां भी आएगी, और इस तो महंगाई का बढ़ना भी तय है, और थोड़ी सी एक सुस्ती की तरफ इशारा भी हो जाएगा अगर ये जल्दी नहीं संभल पाए तो। चलिए, धन्यवाद व्यास जी और आलोक जी, चीनी के बारे में, उसके साथ जुड़े हुए रोजगारी के सवाल के बारे में, और आने वाले वक्त में जो दिक्कत है इकोनॉमी तौर पर भारत के सामने या सरकार के सामने, उसको उजागर करने के लिए। કેમ કે અહીંયા એક વાત બહુ ક્લિયર છે, લોકો કન્ઝ્યુમર સુધી, તમારા ઘર સુધી પહોંચી રહ્યું છે, જો અચાનક જ મોંઘું થાય છે, અને જે વસ્તુમાં આપણે આત્મનિર્ભર છીએ એમાં આયાત કરવાની નોબત આવે તો વિદેશી હુંડિયામણની તો પહેલેથી તકલીફ ચાલી રહી છે, એફડીઆઈ ખેંચાઈ રહ્યું છે પાછળ, અને યુદ્ધના કારણે ઘણા બાહ્ય કારણો છે, એ બાહ્ય કારણો આપણા હાથમાં નથી હોતા, પરંતુ આંતરિક કારણોમાં શું હજુ પણ સરકાર, સિસ્ટમ, અધિકારીઓ કે મંત્રીઓએ નિર્ણય લેવામાં અથવા તો આગોતરું આયોજન કરવામાં શું જનતાને ખાંડ ખવડાવી દીધી છે? ખાવી તો પડશે જ, વધી ગયા છે। જોઈએ આ પરિસ્થિતિ કેટલી નિયંત્રણમાં રહે છે, અથવા તો નિયંત્રણમાં લાવવા માટે સરકાર કેવા અસરકારક પગલાં આવનાર સમયમાં લેશે। નમસ્કાર।